बारबाडोस में अगर आपको हर गली हर मोहल्ले में लेजेंड मिलते हैं और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के सबसे ज़्यादा जो दिग्गज हैं, जो बादशाह खिलाड़ी हैं, वो आपको बारबाडोस की प्लेइंग 11 में, ऑल टाइम प्लेइंग 11 में दिखते हैं, तो एंटीगा बिल्कुल अलग मुल्क है। एंटीगा एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान ही दुनिया में अगर किसी एक शख्स ने कराई तो वो हैं सर विवियन रिचर्ड्स, जो असली किंग माने जाते हैं। जब भी बैट्समैनशिप की बात होती है, अगर आप देखा जाए ऑल टाइम ग्रेट जब आप बात करेंगे तो डॉन ब्रैडमैन, जाहिर सी बात है उनके आगे कोई नहीं रहता है, लेकिन डॉन ब्रैडमैन के बाद विवियन रिचर्ड्स का नाम आता है। वो विवियन रिचर्ड्स जिनको विजन ने सदी के 5 महानतम खिलाड़ियों में चुना था, वो विवियन रिचर्ड्स जो सचिन तेंदुलकर के आदर्श रहे हैं, वो विवियन रिचर्ड्स जो विराट कोहली के आदर्श रहे हैं, वो विवियन रिचर्ड्स जो रोहित शर्मा के लिए हीरो रहे हैं। तो अब जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो एंटीगा पहुंच चुकी है और एंटीगा की पहचान विव रिचर्ड्स से है। जब जब इंडियन टीम एंटीगा पहुंचती है तो विव रिचर्ड्स भारतीय क्रिकेट टीम से मिलने आते हैं। खास तौर पे कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के वो बहुत बड़े मुरीद हैं। और जब मैं 2022 में आया था यहाँ पर एंटीगा में, हालांकि भारतीय टीम का मुकाबला नहीं था, मैं सिर्फ विव रिचर्ड्स से मिलने गया था ताकि मेरी जो क्रिकेटिंग यात्रा है वो अधूरी ना रहे, क्योंकि दुनिया के हर मुल्कों में मैं गया था और एंटीगा नहीं गया था। और एंटीगा में जाने के बाद मैंने विव रिचर्ड्स को अचानक ही इंटरव्यू के लिए पकड़ा था और उनसे जो मैंने सवाल पूछे थे तो वो इसी बात पर राजी हुए थे कि मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट के 2 बल्लेबाज के बारे में आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं वो टालूंगा नहीं। तो आइए आपको पहले सुनाते हैं कि विव रिचर्ड्स किंग कोहली और रोहित शर्मा दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। When you see the likes of Sachin Tendulkar and Virat Kohli always in awe of Viv Richards, how does Viv Richards react? When they come in front of you, they are like an ordinary fan. So what is your reaction? Tell me, the world doesn't know about that kind of fandom you get from likes of Tendulkar and Kohli. Well, the respect is certainly mutual because I myself, I do have a lot of respect for them, what they would have achieved. You know, I admire them dearly, the Kapil Devs and all the individuals that I think would have helped to build and to make Indian cricket. You know, as I said, you know, I'm just a fan of good batsmanship, and you got too many good batsmen in that part of the world. Why don't you just send some of these guys here to the Caribbean for us at present? But you know, your cricket looks good, and it's great to see it. And especially when you played against India, Yeah. we were highly successful against India in the past. But what I think is highly important is to see the progress that India would have made today. You know, top of the tree, you know, it's good fast bowling, good spinners, and good batsmanship. That's what it takes in order for you to assemble a great team. Your thoughts on Rohit Sharma? He's a different class of player and captaincy. Well, I've always liked Rohit. I always like to see individuals who go out and express themselves. And especially when I think it was Virat who was captain before, turned over the captaincy to Rohit. I think it's in good hands. I believe he would have served his purpose to be where he's at today and continue to be a magnificent batsman. As I said, you know, whenever you see Indian batsmanship on the television, you better go and have a look because you're going to see some fantastic shots, just highly skilled individuals. My final question, sir. Viv, one Indian bowler you would have loved to face right now, if in your time, maybe. None really, because to be fair, you know, only the spinners. Because I think your fast bowlers, I guess, have had wonderful production over the years. They have done magnificently well. People in the past used to believe that India were based on basically spinners, but no, you have them all around. You know, good quality all-rounders. You know, your team, in my opinion, and Indian cricket looks pretty good. Thank you so much, Sir Viv Richards. It's such an immense pleasure to have a chat with you. Thank you so much. तो आपने सुना कि विव रिचर्ड्स कितना सम्मान देते हैं विराट कोहली को और रोहित शर्मा जो कप्तान हैं उनको। और इंडियन टीम के लिए मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला है वो बहुत मुश्किल नहीं होगा और शायद ये आखिरी मौका होगा कि विव रिचर्ड्स की धरती, विव रिचर्ड्स के मुल्क में रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना जो है आखिरी इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं। आखिरी इंटरनेशनल का मतलब एंटीगा में शायद वो कभी फिर दोबारा, क्योंकि देखिए अगले 2-3 साल भारत वेस्ट इंडीज़ का दौरा नहीं करेगा और वेस्ट इंडीज़ का दौरा भी करेगा तो ज़रूरी नहीं कि एंटीगा में मैच हो, क्योंकि अब एंटीगा में इंडियन टीम पिछले कई सालों से वहाँ नहीं खेली है। तो रोहित और कोहली
जिनके लिए इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए अब तक शुरुआत बहुत धाकड़ नहीं रही है, वो चाहेंगे कि विव रिचर्ड्स के मुल्क में रिचर्ड्स के सामने अपनी बादशाहत का लोहा मनवाए, क्योंकि जिस तरह से रिचर्ड्स ने अपने दौर में क्रिकेट को बदला, उस फॉर्मेट के लिए चाहे कोई भी फॉर्मेट है उनको एक शानदार बल्लेबाज माना जाता है। यही हाल इन दो मॉडर्न बैट्समैन का है। देखने वाली बात ये होगी कि जब विव रिचर्ड्स इन दोनों खिलाड़ियों से मिलने आएंगे, इन दोनों दिग्गजों से, तो क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।